Students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh classes. So today I am going to teach you the sixth lesson prescribed in your book Footprints Without Feet for class 10th. So the name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So we should first of all know something about the author. So, as I told that the chapter is written by Robert W. Peterson. He was a famous American newspaper writer. What he was? He was a famous American newspaper writer who later became a freelance author of magazine articles. He wrote with authority and particularly on the topics of sports and scouting. He was born in 1925 in Pennsylvania in the USA and died of lung cancer on 11th February 2006. So, this was the background of the author. Now, what is the theme of this story? Actually, The Making of a Scientist is the story of a scientist named Richard H. E. Bright. So, it is an interesting study of how that scientist became a scientist. I mean, how Richard H. Bright became a scientist. After the early death of her husband, Bright was everything for his mother. He used to get top grades in his schools. And not only that, at a very early age, when he was just in the second standard, he had already collected 25 species of butterflies found around his hometown. And he wrote a book, and the name of the book was The Travels of Monarch 10. This book actually gave him a thorough knowledge about the monarch butterflies. And when he was in the second year of his high school, Ebright began to search an unknown hormone in the gold spots of butterflies. And in latter years, he discovered how a cell could read the blueprint of its DNA. So, this is the background of the story. Now, you look into your book, you'll find something written in a box just after the title. Richard E. Bright has received the Searle Scholar Award and the Sering Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ऐसा मैंने पहले ही बताया आपको जब थीम बताया कि उनकी दुनिया पूरी तितलियों की दुनिया में थी। तो रिचर्ड ए ब्राइट जो थे बायोकेमिस्ट्री जिसको जैव रसायन बोलते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको आणविक जीव विज्ञान बोलते हैं, उसके लिए उनको दो पुरस्कार मिला, एक सेरिंग प्लो अवार्ड मिला, दूसरा सीअर्ल स्कॉलर अवार्ड मिला। और तितलियों के प्रति उनके जो आकर्षण थे ना, विज्ञान की दुनिया के द्वारा उनके लिए खोल लिए गए, ऐसा उनका थीम था, ऐसा उनका वर्क था। अब आते हैं, इसमें लिखा है कुछ क्वेश्चंस, रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डिड अ बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ए ब्राइट्स लाइफ? ये मैं पहले बताया आपको, थीम जब बता रहा था कि उनके जीवन में एक बहुत अच्छी किताब आई थी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। और यही द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जो था, यही किताब उनके टर्निंग पॉइंट थी, उनके जीवन का एक मोड़ साबित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसने साइंस के पूरे वर्ल्ड को उसने समझा। और इसी किताब से उन्होंने कई लोगों से कम्युनिकेट किया, जिसमें एक डॉक्टर थे, उनसे कम्युनिकेट किया और उनसे सजेशन लिया, गाइड लिया, उनसे मोटिवेट हुआ, उनसे
और उसके बाद तो फिर जो उनका जो रिसर्च था, साइंटिफिक रिसर्च था जो बटरफ्लाइज पे, उसको इनिशिएट किया था उन्होंने। ये चीज था। दूसरा एक जाता है क्वेश्चन इसमें, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी मां ने उसकी सहायता कैसे की? तो मां उसकी जो होती थी वो हमेशा उसको ट्रिप पे ले जाती थी, उसके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास या माउंटिंग मटेरियल्स जितने होते थे, या और भी जो अदर इक्विपमेंट्स होते जो उसको हेल्प करते थे रिसर्च करने में, उसको हमेशा मदद करती थी, खरीद देती थी। और यही नहीं, शाम के टाइम में दोनों डाइनिंग रूम में टेबल पे बैठ करके एक साथ काम भी करते थे, यानी माँ का सहयोग मिलता था उसको। अगर माँ एब्राइड के पास अगर कोई काम नहीं होता था ना, तो वो उसके लिए काम निकाल लेती थी, वो पढ़ने का काम भी निकाल लेती थी, यानी कि वो साथ साथ हमेशा चलती थी और उसको हमेशा इनकरेज करती रहती थी। तो इस तरीके से माँ का उसका सहयोग हमेशा मिलता था। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। सो यू लुक इनटू योर बुक or on the screen. At the age of 22, a former scout of the years excited the scientific world with a new theory on how cells work. अब यहां पर है, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, और थ्योरी का मतलब जानते ही है, सिद्धांत होता है। तो भूतपूर्व, पहले का, वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में था, स्काउट के रूप में था, स्काउट ऑफ द ईयर बोला है, ने 22 वर्ष की एज में, अवस्था में एक नया सिद्धांत बनाया। और वह सिद्धांत क्या था? अ न्यू थ्योरी। क्या था? हाउ सेल्स वर्क। सेल जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in the article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो क्या हुआ कि रिचर्ड एच ब्राइट और उसके कॉलेज के जितने भी दोस्त थे, इस सिद्धांत का उन्होंने खूब बढ़िया से विवरण दिया, उसको डिटेल्स किया, और विज्ञान की जो राष्ट्रीय एकेडमी थी, जो उसकी कार्यवाही को देखती थी, उसी पत्रिका में उन्होंने अपने आर्टिकल्स को छपाया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. और ऐसा पहली बार ही हुआ था कि जब विज्ञान की इस महत्वपूर्ण पत्रिका ने, इतना पॉपुलर, उसमें कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो वर्क है उनको छापा गया। यूजुअली क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी चीजों को, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर्स होते हैं, उनकी चीजों को छापा जाता है। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के इतने बड़े चीज को छापना, ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब यहां पर आप समझने वाली बात है कि खेल की दुनिया में यह ऐसा ही था जैसे किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन किया गया 15 एज में, 15 की आयु में, और किसी बड़े मैच के लिए उसको प्रमोट कर दिया गया, और पहली बार बैटिंग करते समय ही वह खिलाड़ी जो है वह बहुत कुछ कर दिया। ऐसा ही कुछ यहां पर दिख रहा था। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट टाइम in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. तो ये जो था कि रिचर्ड एब्राइट जो था, वह उसके लिए उसकी विज्ञान तथा दूसरे क्षेत्र में प्राप्त की गई जो उपलब्धि थी, इसकी जो कड़ी बनी, इसका जो सीरीज बना, और इन सब की जो शुरुआत तितलियों से हुई, ये चीज था। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania, और एकमात्र बच्चा होने के कारण एब्राइट पेंसिल्वेनिया में रीडिंग के उत्तर में बड़ा हुआ था, यानी कि वह अपने क्षेत्र का एक पहला लड़का था जो इतना बड़ा काम किया।
There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. बोलते हैं कि रिचर्ड ब्राई उसने कहा कि निश्चित रूप से मैं किसी फुटबॉल या बेसबॉल की टीम से नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज मेरे अंदर जो थी, जो मैं कर सकता था, वह क्या था कि चीजों को इकट्ठा करना। फिर आगे बोलते हैं सो ही डिड एंड डिड इट एवर, और इसने ऐसा ही किया और करता रहा एक ही काम को। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. किंडरगार्टन जब ये बिल्कुल छोटे से क्लास में था, जहां हम जाकर अल्फाबेट सीखते हैं, तो किंडरगार्टन की क्लास से स्टार्ट करते हुए, आरंभ करते हुए, एब्राइट जो थे तितलियों को पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठा करते थे और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी, जितना भी एक्टिविटीज था, उसको नोट डाउन करते थे, उसको चिन्हित करते थे और उसको लिखते थे। He also collected rocks, fossils and finds. इसके अलावा उस पत्थर भी कलेक्ट करते थे, fossils जीवाश्म कलेक्ट करते थे, सिक्के भी इकट्ठे करते थे। He became an eager astronomer too, sometimes star gazing all night. और कभी-कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता था कि रात को तारों को वो देखते रहते थे जैसे कि वो एक खगोल शास्त्री बन गया हो, ऐसा भी करते थे। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. और जब पहली क्लास में थे, उसी समय से उसके अंदर में एक कुशाग्र दिमाग जो था के साथ व्यग्र जिज्ञासा भी थी। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब होता है वायलेंट अर्ज टू नो समथिंग, व्यग्र जिज्ञासा होना। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी मां ने भी सीखने के लिए उसको बहुत उसके अंदर में रुचि को प्रोत्साहित किया। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. यही नहीं, वह माँ जो थी उसको यात्राओं पर ले जाती थी, उसको सूक्ष्मदर्शी खरीदती थी, दूरबीन खरीदती थी, कैमरे खरीदती थी, पर्वतारोही की जो वस्तुएं होती थी वो खरीदती थी, दूसरे औजार खरीद करके देते थे और दूसरे कई तरीकों से उसकी मदद करती रहती थी। She आगे उसके विषय में बता रहा है कि I was his only companion until he started school, his mother said. After that I would bring home friends for him. फिर बताते हैं कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया था, तब तक मैं उसकी इकलौती मित्र थी, उसकी माँ ने बताया। यानी माँ ने कहा कि एक ही मेरा दोस्त था और मेरा बेटा था। उसके बाद मैं उसके लिए कई दोस्त को घर ले आई, फिर उसको दोस्ती बढ़ाई गई उसकी। But at night we just did things together. लेकिन रात में हम इकट्ठे हो जाते थे और काम करते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in the 3rd grade. और इनका नाम शॉर्ट नेम निक नेम था रिची। तो रिची के पिता के जो डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से रिची उस समय 3rd क्लास में थे, तीसरे क्लास में थे, तो रिची ही मेरा सब कुछ था, ऐसा उसकी माँ साइंटिस्ट की बता रही। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said. उसकी माँ ने ये भी बताया कि वह और उसका बेटा लगभग प्रतिदिन शाम को भोजन की मेज पर इकट्ठा होते थे। यदि उसके पास कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। कोई फिजिकल वर्क के लिए नहीं, शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी, बल्कि मानसिक काम ढूंढती थी। वह इसे पसंद भी करता था। आगे बोलती है he liked it, he wanted to learn. वह उसको पसंद भी करता था और वह सीखना भी चाहता था। And learn he did. He earned top grades in school. और उसने सीखा भी और उसने स्कूल में सबसे ऊंचा स्थान भी, यानी कि उच्च स्थान प्राप्त किया। On every day things he was just like every other kid, his mother said. और रोजमर्रा का जो काम होता है, डेली जो वर्क होता है, में वह जो दूसरे साधारण बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी रहता था। ऐसा नहीं था कुछ विशेष तरीके से वो रहता था, ऐसा वो आगे बता रही है। By the time he was in the 2nd grade,
Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. और उस समय तक वह बेचारा जो लड़का था दूसरी कक्षा में था, और दूसरी कक्षा में पहुंचते पहुंचते एब्राइट ने तितलियों के उन सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर चुका था जो उसके जो होम टाउन थे, गृहनगर जो था उसके आसपास जो मिलती थी उसको वो इकट्ठा कर लेता था। अब यहाँ पर आप बॉक्स देख रहे हैं बना हुआ है, उस बॉक्स में जो 25 तरह की जो तितली थी उसको कैसे कैटेगराइज करके उसने उसके डिटेल्स को लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ने के लिए मिला है। इसको आप बाद में फिर से देखेंगे कि कैसे अलग अलग 3 कैटेगरीज में तितलियों को बांटा गया है और वो सबका नामकरण उसमें किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. और उसने कहा कि शायद वह मेरी तितलियों को इकट्ठा करने का अंत था। मैंने 25 तितलियां इकट्ठा की थी। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. और फिर इसके बाद उसने कहा कि पर तभी उसको उसकी माँ ने एक बच्चों की पुस्तक दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। इसका हिंदी अगर बहुत ढंग से देखा जाए तो इसका नाम होगा सम्राट दशम की यात्राएं। दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. वह जो किताब जो थी वह यह बताती थी कि जैसे जो मोनार्क जो बटरफ्लाई जो सम्राट राजा जैसी जो तितलियां होती हैं कैसे मध्य अमेरिका वो पहुंची, और उसने जिज्ञासु जो युवा जो संग्रह करता था, ये यंग कलेक्टर था, के सामने विज्ञान की दुनिया को खोलकर रख दिया। उस किताब के माध्यम से इसको ज्ञान हो। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और पुस्तक के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि वे तितलियों के जो देशांतरण होते हैं अदर कंट्री से जो आते हैं माइग्रेट करके, उसको अध्ययन करने में सहयोग करें। तो चूंकि इनके पास पहले से भी 25 तितलियों पर पूरा का पूरा विवरण था तो इनके लिए किताब मीनिंगफुल था। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. और यही नहीं, उन लोगों को जो फ्रेडरिक ए जो थे और वो उसमें जो अर्कहार्ट के जो अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, वहां पे यानी कि टोरंटो विश्वविद्यालय जो था और कनाडा के जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट थे उनके द्वारा पाठक से कहा गया था, इस किताब के जो भी रीडर्स थे उसे कहा गया था कि वो शोध के लिए तितलियों को बांध करके रखें। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. तो अब क्या किया कि जो एब्राइट की माँ थी उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को चिट्ठी लिखा और तुरंत ही एब्राइट जो है वो जितने भी मोनार्क तितलियां थी, सम्राट तितलियां थी, उनको उनके पंख में गोंद लगा करके धागे से बांधना शुरू किया। उसने was asked to send the tag to Dr. Urquhart। और ऐसा हुआ कि चूंकि ऐसा करना था और बांधना शुरू किया तो अब उसमें जितने भी लोग थे, जैसे anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Urquhart, यानी कि जिस किसी को भी बंधी हुई तितली मिलती थी उससे कहा जाता था कि वह उस तितली को डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे, यानी कि एक पहचान बनाना होता था उसको। अब क्या होता है आगे? द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। और जो रीडिंग नामक जगह था उसके आसपास जो तितलियों को पकड़ने का जो समय था गर्मियों के अंत में 6 सप्ताह तक चलता था। और उसके लिए ग्राफ आपको दिया गया है, उस ग्राफ को आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ग्राफ में कि कैसे कैसे तितलियों को पकड़ने का कौन कौन सा काइंड्स है और उसके टाइमिंग कब है और कितने कितने नंबर्स में कलेक्ट किए गए, उसका पूरा ग्राफ दिया गया है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मेनी। और उसमें बता रहे हैं कि यदि आप उन्हें एक एक करके पकड़ेंगे तो ज्यादा तितलियों को पकड़ नहीं पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट का अगला कदम यह था तितलियों के झुंड को पकड़ना था। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement
through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो वह क्या करते थे कि वह एक मादा मोनार्क को पकड़ते थे, उसके अंडे लेते थे, उसको अपने बेसमेंट तहखाना जो होता है उसके जीवन चक्र के हिसाब से अंडे से कैटरपिलर बनाते थे और कैटरपिलर से प्यूपा, और फिर प्यूपा से एक वयस्क जो है, एडल्ट जो है, तितली जो है वो पैदा कर लेते थे, विकसित कर लेते थे. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. फिर वह तितलियों के पंख पर टैग बांधते थे, उसका विवरण लिखते थे और उसको फिर उड़ा देते थे, और वही तितली को पकड़ा जाता है, जिस पर टैग लगाता था वो पकड़ा जाता था. For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो कई वर्षों तक उसका जो बेसमेंट था तितलियों का घर बना रहा, जो विकास के विभिन्न अलग अलग जो उसका लाइफ साइकिल उसके हिसाब से वह गुजर रहा था. यानी कि उनका घर पूरा का पूरा वो तितलियों को डेवलप कराने का एक वो ये बन गया, क्या कह सकते हो उसको, एक जगह बन गया वहां पे. इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. और फिर धीरे धीरे करके तितलियों के पर के में टैग बांधने की जो रुचि थी मेरी कम होती चली गई. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक. यह काफी उबाऊ काम होता है और बेकार काम जैसा था. एवराइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट. एवराइट ने कहते हैं कि इतने समय तक मैंने जो कुछ भी किया, ही लाफ, वो हंसते हुए बताते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड. और जितने बटरफ्लाई मैंने टैग किए थे उसमें से सिर्फ 2 को मैं प्राप्त कर पाया, रिकैप्चर कर पाया. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव. और वो मेरे रहने की जगह से 75 मील से ज्यादा दूर की नहीं थी, ऐसा उन्होंने बताया. अब यहां पर आपको रीड एंड फाउंड दिया गया है. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट लेसन्स डज ईब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. अब इस पर डिस्कशन, क्योंकि आगे के लिए डिस्कशन है, तो उन्होंने देखा कि साइंस फेयर में एक आदमी को रियल एक्सपेरिमेंट दिखाना पड़ता है, खाली डिस्प्ले करने से मटेरियल का वो विनर नहीं हो सकता है. फिर है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक. फिर वो कौन कौन से नया नया परियोजना शुरू किए, इसका डिस्कशन उसमें है. फिर व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन मेकिंग इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सा गुण जरूरी है, तो उसमें ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, एनालिटिक माइंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, राइट रीजन होना चाहिए, और कई तरह की और भी बातें हैं जिसमें उसकी चर्चा होगी और हम लोग उसको करेंगे सेकेंड पार्ट में. नाउ थैंक यू.